पर उसे पीटा गया। सीधा आपको राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां इस वक्त सदन की कार्यवाही जारी है। Healthy mind and with healthy spirit, we should take it and the investigation should continue और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। धन्यवाद सर। एक yes, but before one second, but before leader of the opposition speaks, you have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was apparently a wad of currency notes was recovered by the security officer from seat number 20222, presently allotted to Sri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I do not cast any aspersion on anyone. Yes, It's a seat. I have to indicate who allotted see, who. I request you, sir, yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. Yes. We never objected that you should not investigate. Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things and you people do that. We don't do that. It is your quality. It is your quality. Nothing will go on record. Are you sure? बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज तो वैड ऑफ करेंसी नोट मिले, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती है। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी। आज जो माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है, मैं समझता हूँ फिर इसको एक रूल बनाया जाए सदन में कि कोई भी विषय जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, कोई भी विषय जिसके ऊपर गंभीरता से कानूनी प्रक्रिया हो रही हो, क्या विपक्ष ये आज सदन को और देश को कहना चाहता है कि आगे से ये सदन को ठीक से चलने देंगे और कभी भी ऐसे फेक नैरेटिव के ऊपर कभी भी ये सदन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और फेक नैरेटिव के ऊपर ये विदेशी ताकतों के ऊपर कभी अपना विश्वास नहीं जताएंगे। The Honorable Minister, one second. The Honorable Minister has responded to an issue raised by LOP that if a matter is under investigation, that should not be debated. Fair enough. But he says that it should be a general rule. I said when our chairman is investigating, I am not investigating. It is not a court. I never saw the judiciary.
नहीं। I said when you are I am investigating not and investigating. you are getting information, they need not bother. We are safe in your hand. As long Honorable as you are members. fair, we are safe in your hand. अरे बैठो सबको देख चलो. Honorable But- members, चुप. I don't investigate myself. Then I who will cause investigate? investigation to take place. It is an expert. For example, let me tell you, sir. No, 1 second. 1 second. I have been extremely careful that anti-sabotage check must be very severe, because in these highly technological situations where chemicals are used, anyone may use anything, this side or that side, the first and foremost is security. From that perspective, it was done. गैलरी से कोई नीचे उतरा तब कितने दिन इन्होंने हाउस नहीं चलने दिया था? तब भी तो इन्वेस्टिगेट हो रहा था. तब कितने दिन हाउस नहीं चलने दिया था? चलने देंगे. मान्य सदस्यों ने, नेताओं ने तय करना चाहिए कि 0 आवर हम सबकी संपत्ति है, तो आगे से हर बार 0 आवर में ये संतुष्ट करें कि कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे. क्वेश्चन आवर उतना ही जरूरी है, लेजिस्लेटिव बिजनेस गवर्नमेंट का उतना ही जरूरी है. Final word from the leader of the house. Leader of the house, final word so that I proceed further. हाउस शुरू करें. सभापति जी, आज जब इतना गुड सेंस प्रिवेल कर रहा है विपक्ष के ऊपर, तो हम सबको सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि लेजिस्लेटिव बिजनेस को कभी डिस्टर्ब न किया जाए और जनरल तरीके से हाउस की प्रोसीडिंग चले और 0 आवर और क्वेश्चन आवर निश्चित रूप से चले. Thank you. Honorable members, वो तो दूध का दूल्हा है और बिना बात का दूसरों के ऊपर आरोप लगाने में एक्सपर्टीज है. हाउस ने, लीडर ऑफ द हाउस ने जो अपील किया है, हम लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को भी बहुत इज्जत देते हैं, उम्र से भी, उनके एक्सपीरियंस को भी. फिर भी उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस को भी मिस्टर नड्डा करके ऐसे एड्रेस करते हैं अभी भी रिकॉर्ड में भी. और एक इज्जत हाउस के अंदर में एक दूसरे का इज्जत बरकरार रहना ये बहुत अनिवार्य है. और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद, अभी सर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आज जो वक्तव्य दिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने, ये देखो सदन चलेगा तो परंपरा और इज्जत के साथ, ऐसा नहीं होता है. इसमें लीडर ऑफ द हाउस ने जो लास्ट में अपील किया है, हमारे पार्टी की ओर से हम लोग सदन चलाना चाहते हैं, पीसफुली चलाना चाहते हैं, लेकिन honorable members, I have received one notice under Rule 267. सर मेरा इतना कहना है, जो लास्ट अपील किया उसको फॉर्मली अगर एलओपी साहब बता सकते हैं कि आगे आप छोटे छोटे विषय को यहाँ मुद्दा उठा करके हाउस डिस्टर्ब नहीं करेंगे. आपका तरफ से भी अननेसेसरी मुद्दा उठा के हाउस डिस्टर्ब नहीं करेंगे. आप भी कमिटमेंट देना पड़ेगा और फेक नैरेटिव यहाँ आप खड़ा नहीं करेंगे, उसका भी आप वादा करना पड़ेगा. नॉन इश्यू को लेके Honorable members, I have received one notice under Rule 267 seeking discussion on the problem of farmers. I do not find the same in order and therefore I am unable to agree to that. Matters with permission 0 hour. Shri A.D. Singh, nothing will go on record. Shri A.D. Singh, demand to grant more
visas to technical experts from China? Thank you, Chairman, sir. Private sector enterprises from footwear and textile to engineering and electronics in India have purchased huge machinery from China but are unable to use them productively without the help of Chinese technicians. The machinery is lying idle and export orders remain unfulfilled. The Secretary Department for Promotion of Industries and Internal Trade has accepted the claim by Indian companies that a significant skill gap exists between Chinese and Indian factory supervisors and workers. The leader of these private companies are of the view that Chinese professionals are highly productive and are less expensive. In view of this, the Engineering Export Promotion Council of India is of the view that more visas should be given to Chinese experts so that the machinery in India can be put to efficient use. Hence, strategies should be designed in such a way that experts are issued visas after due diligence, keeping in view national security. The process should be expedited. Thank you. Thank you. Honorable Sri Jose K. Mani, concern over rising cases of non-communicable diseases in the country. Honorable Jose K. Mani, not present. Hey, he is present. Please, You always forget me, sir. please, no. I raised today to draw attention to a growing public health crisis in the country. तो राज्यसभा की कार्रवाई जारी है, लेकिन इन सब के बीच हंगामा तब मचा जब राज्यसभा में नोट के बंडल जो है वो मिलने की बात कही गई। और इस पूरे मामले को लेकर अधिक अपडेट्स के साथ कनिका कटियार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। कनिका, क्या है पूरा मामला? अभिषेक मनु सिंघवी के सीट पर नोट मिले हैं, इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ, क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरह की जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि उनकी सीट 222 अलॉट की गई है, साबोटाइज चेकिंग के दौरान जो है कल शाम को अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर कुछ नोट की गड्डियां मिली, जिसको लेकर जो है राज्यसभा में जो नेता हैं उनको ये जो है इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद जो है हंगामा शुरू हो गया। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से लगातार जो है जांच की मांग की गई, वहीं विपक्ष ने भी इस मामले को उठाया और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो है एक आर्गुमेंट जो है देखने को मिली। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने इस बात को रखा कि अगर पैसा मिला है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं जगदीप धनखड़, जो कि चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है पहले जांच की जाएगी कि आखिरकार पैसा कहां से आया और किसका पैसा है। और ये बड़ा मामला है क्योंकि संसद भवन के भीतर और बल्कि पार्लियामेंट के अंदर अगर ऐसी कोई भी चीज मिलती है तो वो कहीं ना कहीं डेंजरस हो जाती है। तो इस तरह की पूरी इंसिडेंट को लेकर जो है कहीं ना कहीं अब हंगामा शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लगातार ये बोल रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए, अगर कुछ भी होगा तो वो सहयोग करने तैयार है। लेकिन वही जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो हंगामा कर रही हैं और सत्ता पक्ष की पार्टी जो है वो जो है ऑपोजिशन पे जो है आरोप लगा रही है कि इस तरह की चीजें जो है विपक्ष उन तमाम चीजों में सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक मौका मिल गया है सत्ता पक्ष को विपक्ष को घेरने का, क्योंकि लगातार जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है विपक्षी पार्टियां जो है वो हंगामा करती हुई दिखाई दे रही, चाहे वो अडानी का मामला हो चाहे अन्य मामला हो। तो अब ये बहुत बड़ा मामला हो गया है जिसको लेकर जो है पार्लियामेंट की जो कमेटी बनेगी वो जांच करेगी। उसके बाद जो है आखिरकार इस पे इन्वेस्टिगेशन के बाद तय होगा कि आखिरकार वो पैसा कहां से आया। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट पर अगर पैसा बरामद होता है तो वो अपने आप में एक बड़ा अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या अब तक? देखिए, अभी हाउस चल रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर ही है, हाउस के अंदर ही है। जाहिर तौर पे जब वो बाहर निकलेंगे तो तमाम सवाल जो है उनसे पूछे जाएंगे। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से अभी कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ राज्यसभा में कहा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए कि आखिरकार। ठीक है, मैं एक बार जरा सुनवाता हूं कनिका, इस पूरे मामले को लेकर सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा है। Honorable members, I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026.
तो जानकारी देते हुए जगदीप धनखड़ नजर आए कि सीट नंबर 222 यानी 222 जो कि अभिषेक मनु सिंघवी के नाम पर अलॉटेड है, वहां पर नोट के बंडल जो हैं वो पाए गए। कल जब सदन की कार्यवाही स्थगित की गई थी उसके बाद जो रूटीन चेक होता है उसके दौरान हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी कनिका जुड़ी हुई हैं तमाम अपडेट्स के साथ। कनिका, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष ने जो सवाल उठाए, जहां पीयूष गोयल ये कहते हुए नजर आए कि इस पूरे मामले को लेकर जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि जब तक इस मामले की जांच ना हो तब तक कुछ भी जो है नहीं कहा जाना चाहिए, तो पीयूष गोयल ने इसके जवाब में कहा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष इस बात को स्वीकारेगा और ये एक जनरल प्रैक्टिस में लाएगा कि जब तक कोई भी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन हो उसको लेकर जो है वो सदन का समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, उस पर बिना वजह हंगामा नहीं किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे जब जगदीप धनखड़ ने इस बात का उल्लेख जो है संसद भवन के भीतर राज्यसभा हाउस में किया, तो उसके बाद जो है विपक्षी तमाम सांसद जो है उन्होंने हंगामा शुरू किया और वही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनकी ओर से कहा गया कि जब तक इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब तक किसी तरह की टिप्पणी जो है वो नहीं की जाए। वहीं अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के तमाम जो सांसद है और खास तौर पे पीयूष गोयल हो, जेपी नड्डा हो, इन लोगों को मौका मिला और उन्होंने कहा कि विपक्ष को ये सीखना चाहिए कि जब तक कोई मामला जांच में है, जब तक उसकी जांच हो रही है, अगर जांच होने के बाद ही उस पर कोई ना कोई टिप्पणी होनी चाहिए। तो जिस तरह का जो अडानी मामला कांग्रेस पार्टी उठा रही है संसद के भीतर और जेपीसी की मांग कर रही है, आज कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को ये मौका मिल गया कि विपक्ष को वो घेरे और लगातार जो है यही कहा जा रहा है कि संसद का समय जो है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रूटीन जब चेकअप होता है, पार्लियामेंट जब हाउस शुरू होता है उससे पहले शाम को जो है हाउस में चेकिंग होती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। और कल जब राज्यसभा में चेकिंग हुई तो कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अभी न्यूली इलेक्ट हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी सीट पे जो है पैसा बरामद हुआ है, जिसको लेकर जो है अब राज्यसभा हाउस में हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया है कि अगर मामला है गंभीर तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल लगातार आप चाहे पीयूष गोयल हो, जेपी नड्डा हो या फिर तमाम किरण रिजिजू हो, ये तमाम जो लोग हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि जब तक जांच ना हो तब तक विपक्ष को किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और संसद का कीमती समय जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। कितना रकम जो है वो बरामद किया गया, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या कनिका, कि अमाउंट क्या था? देखिए, अभी तक अमाउंट की जानकारी जो है वो नहीं बाहर आ पाई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक अच्छा खासा अमाउंट जो है गड्डी जो है नोटों की वो बरामद हुई है और ये जांच का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी बात बन जाती है कि संसद के भीतर बल्कि हाउस में अगर इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या वो ये देखिए कनिका, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा मैं सिर्फ 500 रुपए का नोट एक लेकर जो है वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो है वो जाता हूं। ऐसा मामला मैं पहली बार सुन रहा हूं। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये कहा गया है और साफ तौर पर उनकी सीट से ये जो रकम बरामद किए गए हैं उसको लेकर उन्होंने डिनाई कर दिया और कहा है ये पैसे मेरे नहीं है। फिर तो बड़ा सवाल ये है कि पैसे किसके हैं? बिल्कुल साफ तौर पे ये बड़ा एक मुद्दा है और अभिषेक मनु सिंघवी ने इससे पहले भी जब हाउस चल रहा था तो वो पीछे बैठे हुए चिल्ला रहे थे और यही कहते कि पैसा मेरा नहीं है, पैसा किसी और ने रखा या किसका है मुझे नहीं पता। और अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से बरामद हुआ है तो उनका स्पष्टीकरण भी सामने आ गया है कि वो 500 का नोट लेके जाते हैं। लेकिन बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि अगर ये पैसा अभिषेक मनु सिंघवी का नहीं है और वो इस बात को मान रहे हैं कि ये पैसा उनका नहीं है, तो आखिरकार ये पैसा किसका है और किसने उस टेबल पे उस पैसे को रखा? क्या ये कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है या इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की डिमांड जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पे चाहे वो ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट के सांसद हो या बाकी सत्ता पक्ष के लोग हो, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पे गंभीर मामला है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और वाकई ये बड़ी बात है कि आज तक संसद भवन की कार्रवाई के बीच में चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ऐसा कोई मामला जो है वो सामने नहीं आया है और पैसा बरामद होना अपने आप में बड़ी बात है, जिसके लिए अब हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है राज्यसभा हाउस में। बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी साफ तौर पर डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच होगी और आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसमें देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो सरकार को मिल गया है, जिसके जरिए वो विपक्ष को घेरता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कनिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी
दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आज दिल्ली कूच करेंगे। आपको बता दूं, पंजाब और हरियाणा के किसान, ये बड़ी खबर आ रही है। दोपहर 1 बजे दिल्ली